Good evening and welcome. Welcome to our regular spirituality and healing meet. This is the Divine Healing Valley Wednesday meet, and I'm Shashidhar, your host. I welcome all of you to this session. And the agenda for today's session is the path of devotion or faith and wisdom. So that's what we're going to discuss on. So we are into a discussion on the path of faith, Bhakti Yoga, and the path of wisdom, which is Gyan Yoga. Yes, we have already discussed this in different you can say sessions. So we have talked about the wisdom of Buddha's teaching, and Gautam Buddha's teaching. We have spent a lot many sessions on that, and that was the wisdom path. That was the Gyan Yoga. And also we have talked a lot about the Bhakti Yoga, the path of love, the path of devotion, the path of faith. Yes. So first, let us have your understanding on what do you see the impact in your life walking on these two paths. So path of Bhakti Yoga and Gyan Yoga. आपकी लाइफ में कैसा impact आया है इसका? And if you can distinguish that, then we can go ahead and discuss further how your life can be impacted further walking on this path of Bhakti Yoga or the Gyan Yoga. Yes, so who would like to share? Who would like to share? I can talk. Yes, Simiji, go ahead. So basically, Gyan Yoga, I think, is more important for me because during all those struggles which I had gone through, जो struggle को face करने की एक वो होनी चाहिए थी. I was not aware of that. Basically कि मैं इस टाइम पे क्या करूं, ये कैसे होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ज्ञान जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर सिचुएशन को फेस करने के लिए. एंड और हर मतलब जैसा आपने हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कवर किया, फॉरगिवनेस, प्रेयर, फियर, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ज्ञान योग. ये चीजें हमें कभी ना तो कोई स्कूल में सिखाता है ना कॉलेज में कभी कोई सिखाता है. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, लैक्यूना है शायद हमारे ये सिस्टम में कि हमें ये चीजें बचपन से नहीं सिखाई जाती हैं. This is more what my take is. Okay, got it. So what you're trying to say is that Gyan Yoga has impacted you, and your take is that Gyan Yoga has been more effective in your life, correct? Okay, let's acknowledge Simiji for that sharing. Very good. We will look into more details. First of all, I just want to know your perception. Yes. See, Gyan Yoga, I would only say is needs a dedicated approach because there is a lot of introspection that you need to do in Gyan Yoga. So it is not easy path. Gyan Yoga is supposed to be, of all the four paths, supposedly considered to be the toughest path because there is a lot of introspection and people don't want to look inside them. वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बहुत कमिटमेंट, बहुत हिम्मत और बहुत क्या बोलते हैं जोश भी चाहिए. मतलब कंटिन्यू करने के लिए इस बात पे यू नीड लॉट ऑफ कमिटमेंट. यू नीड रियल, यू हैव टू बी रियली हेडस्ट्रॉन्ग कि मेरे को आगे बढ़ना है. देन ओनली ज्ञान योग विल मेक एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ. बट भक्ति योग इज इजी, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव बीन ट्रेन्ड इनटू भक्ति योग. तो भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दिया जला लो, kind of a thing. So we are family mindset is such that there is some kind of bhakti already going on at some level at your homes. पूजा पाठ में या कोई मंत्र में, मंत्र जाप में या मंदिर जाने में या प्लेस ऑफ वर्शिप जाने में हमारा एक माइंडसेट है जो हमारी फैमिली में हमको मिलता है और उसके बेसिस पे भक्ति योग comes to us faster. So initially we have a tendency of either believing in God or not believing in God. So Bhakti Yoga is always about full faith. That means we believe in God. कोई doubt नहीं है उसमें. So full faith in the divine is Bhakti Yoga. I hope everybody is okay with this, what I'm saying, right? तो भक्ति योग का मतलब क्या है? कोई डाउट नहीं है. There is a supreme power and you have full faith in that and you are complete surrender to that divine. That is Bhakti Yoga. So समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है.
और समर्पण से क्या होता है, आप सब कुछ अपना समर्पित कर दोगे तो उसमें आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भक्ति योग इज सपोज टू बी वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि इमोशनल center is the heart. Heart is supposed to be the emotional center. And today only I was reading a post from Sadhguruji that your emotions are such that, like it can take you to higher levels of consciousness and it can also take you to the lowest level of consciousness. So emotions अगर unstable होंगे तो आपकी spiritual journey can go for a real toss. So to bring that emotional stability, Bhakti Yoga is considered to be very, very powerful because it purifies your heart in a big way. And the moment your heart is purified, you experience love and peace very, very strongly in your heart center and you become stable. So वहां पे Bhakti Yoga is very, very profound and powerful, you can say. Moving on, then you move on to the Gyan Yoga part, which is the third eye chakra. So heart chakra and third eye chakra, if I put it that way. I hope all of you are aware of a little bit about the chakras. So when we are talking of the heart chakra, we are talking of Bhakti Yoga, the path of love, devotion, bhakti, service. And when we are talking of wisdom, we are talking of the third eye chakra, which is the Gyan Yoga. So obviously, Gyan Yoga comes at a higher level of consciousness and Bhakti Yoga can take you, make that path easier for you. जब तक हार्ट चक्र पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, आपका ज्ञान योग का में आपको जो बोलते हैं ज्ञान योग में आपको फुल महारत हासिल नहीं हो. That understanding will never come. That is why the combination is supposed to be the best. That is what Swamiji also said. Swami Vivekananda used to say, choose all the four. What is the problem? Why do you want to operate in the paradigm of either or? Choose all the four. आपको कर्म योग करो, राज योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग सर करो. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज. नेटवर्क थोड़ा सा होगा, बीच-बीच कोई में बात थोड़ा नहीं. You can watch the recording later. There is nothing I can do on that. Yeah. But what I was saying is, Swami Vivekananda also said that you don't have to follow one particular path religiously. Means एक ही करना है और दूसरा कोई नहीं करना है. Don't work in an either or paradigm. Work in a paradigm of both this and that. Whatever comes to you as your calling, follow that. तो ये भक्ति योग is your calling, तो भक्ति योग में चले जाओ. थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपको मेडिटेशन और प्राणायाम में इंटरेस्ट आ रहा है या वहां पे आपकी कॉलिंग है, then that you are moving on to Raj Yoga. And anyway, if you are serving people, you are already into the कर्म योग. तो कर्म योग तो आप करोगे, कर्म तो आपको करना ही है. तो इन सबसे जो ज्ञान मिलेगा उससे आपने लोगों को सर्व ही करना है, right? And if Gyan Yoga is your calling, you go for the Gyan. So, though of course he was a very, very profound, you can say speaker on the Gyan Yoga part, but he always said follow all the four paths. So that's what I would say. For any seeker, I would say choose the path which is your calling. Don't restrict yourself to any one path. तो either और मेंटालिटी से निकलना है और बोथ दिस एंड दैट वाली मेंटालिटी से हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाना, राइट? सो इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट भी जरूरी है, ईगो को सरेंडर भी करना है एंड ज्ञान भी लेना है, राइट? So that will be the combination which is going to take you ahead. So let's have some people share on what I'm saying. Then we will have further discussion. तो सिमी जी ने तो अपना बता दिया. She is more into the ज्ञान योग part. Yes, but anybody else who would like to share? कोई बोलना चाहेंगे? विजय जी, प्रोफेसर नीलेश. यस यस विजय जी, आप म्यूट पे हैं. बस शशिधर जी, वही ज्ञान योग तो समझ में आता है, भक्ति योग समझ में नहीं आता. तो उसमें समझना नहीं है, समझना है तो ज्ञान योग है. तो समझना है तो यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ज्ञान योग. तो यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड भक्ति योग. दैट्स व्हाट आई वुड से, बिकॉज़ भक्ति में से कोई उसमें आपको रीजनिंग नहीं करनी है. भक्ति योग इज सिंपली सरेंडरिंग टू द डिवाइन, हैविंग फुल फेथ. फेथ का मतलब क्या होता है? सी वी ट्रस्ट ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज देयर इज अ रीजन. वो बहुत अच्छा है, उसने मेरी बहुत देखभाल करी है, सो आई ट्रस्ट हिम, है ना? तो ह्यूमन बीइंग्स को ट्रस्ट करने के लिए देयर इज अ रीजन. व्हेन देयर इज अ रीजन यू कॉल दैट ट्रस्ट. व्हेन देयर इज नो रीजन यू कॉल दैट फेथ. So I have full faith in Lord Shiva, I have full faith in Lord Krishna. Why? Because
दैट्स इट, कोई बिकॉज नहीं है उसके लिए, ये भक्ति है। तो वही भक्ति में फेथ नहीं है ना, वही हाँ, फेथ नहीं है, वही तो issue है। वो डेवलप करना है। दैट इज व्हाई दैट इज वो व्हाट वो स्वामी कैसे, जी आल्सो वो सेड, हाँ have some practices. There are many practices which we have discussed in Bhakti Yoga. Go to the place of worship, start going there. You will feel good. Feel the vibration there. When you जब लोग चार धाम की यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, करेक्ट, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी एक रूटीन पकड़ो उसको, and when you are doing that, see what kind of changes are coming into you. And I've seen, they've said that when you are falling in love with the divine, then you can divinize your human relationships. We talked that in Bhakti Yoga also, correct? There are different forms in which you can worship the divine. As a parents, Parampita Paramatma, as a child, Gopal Krishna, as a lover, yeah. So what Meera worshipped Shri Krishna as, correct? Or simply as a Lord, जैसे हनुमान जी सेवक हैं, श्री राम के सेवक हैं, तो complete surrender, उनके पूरी जिंदगी he had dedicated to service of Sri Ram. So you can worship divine in different ways and then bring that into your life, in your human relationships. That is where your heart will be full of love and all the lower emotions will be dissolved in it, and your heart will be so pure that you will be ready to move on to the next level of higher level of consciousness. So that is why उसकी don't नीड discard bhakti. Don't उसकी नीड discard नहीं bhakti फील होती, like it is not possible or it is not my liking. नहीं उसकी नीड नहीं फील होती, वो बोल रहा हूँ मैं। नीड है, आपको फील नहीं हो रही, अलग बात है। आई नो, लेकिन फील नहीं होती नीड। हाँ, तो फाइंड आउट ए प्रैक्टिस एंड सी द डिफरेंस। अनलेस यू प्रैक्टिस इट, हाउ डू यू नो? यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट। आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए क्या है, या अगले जन्म के लिए छोड़ा हुआ तो अच्छी बात है। इस जन्म में ज्ञान योग करिए, अगले जन्म में भक्ति योग कर लेना। बट आइडिया इज you should be open minded to try different ways, because this can move you forward in your spiritual journey. Why not? All of us are seekers here. Look for any opportunity to move ahead in your spiritual journey, and this is a very powerful tried and tested method and the easiest, by the way. चारों मेथड में सबसे आसान ये है, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना, प्राणायाम नहीं करना, मेडिटेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ईगो को सरेंडर करना है। अब ये मत बोलना ईगो नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग यू हैव एन ईगो, you have the vikars in your body. Body means either in the form of disease or in the form of stress and illness in the form of mind. तो माइंड में और बॉडी में आपके जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, ये सब जो हैं आपके ईगो के ही मैनिफेस्टेशन. So you have a lot of ego in you and you need to surrender this ego, and the best way to surrender the ego or dissolve the ego is bhakti yoga. So Vijay ji, look into it. I will not have further discussion on this topic because हमने पिछले सेशंस में भी ये बात करी है. But the idea is that you have to develop some form of bhakti yoga, some practices of bhakti in your life so that you can purify your heart. That is the basic idea. And you can have different emotions there: love, compassion, serving, contribution, डिवोशन, ये सब जो आता है, ट्रस्ट, फेथ, ये सब वहां से आएगा, सरेंडर. ऑल दिस विल कम वेरी इजीली व्हेन यू आर फॉलोइंग भक्ति योग. यस, यू कैन आल्सो हैव दैट व्हेन यू आर हैविंग ज्ञान योग. नॉट दैट यू कैन नॉट, यू कैन डेफिनेटली, बट देन ज्ञान योग का प्रोसेस अलग है, लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एंड समटाइम्स यू कांट सी दैट. यस, हियर यू सी ए भजन, either you sing that bhajan or you hear that bhajan and you are full of tears. तो आपका हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो जाता, and it's a 5 minutes bhajan. Now Simi ji sings the bhajan, Tony sings not bhajan but he sings songs and so emotional that he can flow with it. So heart is actually melting down and all the ego can be swept away. That is the power of bhakti. Okay, let's have more people share. Who would like to share? ऋषि जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। जितिन हाँ जी, खन्ना। हाँ जी, यस जितिन, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जितिन, थैंक यू। पूछिए. जैसे ईगो वाला आपने अभी पॉइंट बोला, तो एक जो मैं माइट बी आई एम रॉन्ग, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी होता है कि एवरीथिंग इज कंप्लीट व्हेन इट इज इन टोटल, हम अकेले कुछ नहीं करते, वी अलोन डोंट डू एनीथिंग बट वी कंप्लीट एंड वी आर कंप्लीट विद अदर थिंग्स, तो उसमें भी क्या ईगो खत्म हो जाती है?
आप अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाइक क्या है? मैं जैसे आपने बोला कि ईगो को खत्म करने वाली, जैसे अभी आप बात कर रहे थे। ईगो कभी भी खत्म नहीं होगा, पर ईगो को मेल्ट करके आप उसको हाँ, हार्ड जो ईगो है उसको मेल्ट करके माइल्ड कर सकते हो। तो एज अगर लॉन्ग हम एज यू आर कॉन्सेप्ट ब्रीदिंग ऑफ द ईगो विल बी देयर। जी, तो इफ वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी, तो क्या ईगो मेल्ट हो सकती है उसमें? टोटलिटी का मतलब क्या है? कि हम अकेले कुछ नहीं करते, इट इज ऑल, कि जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती तब एक एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ये काम हो गया। यू आर टॉकिंग ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इज जी दैट व्हाट यू मीन बाय टोटलिटी? जी जी जी। ओके, तो टोटलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके फैमिली में 8 लोग हैं तो 8 लोगों की हाँ कॉन्शियसनेस से उस फैमिली में कोई एक्शन होगा, जी करेक्ट? एंड ईच पर्सन विल जी। बी impacted by that in a different हाँ way जी। depending on हाँ their level of consciousness. हाँ। Okay, हाँ, तो अब मैं समझ गया, अब टोटलिटी का मतलब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। हाँ, तो जी, अब आप बताइए, तो उससे क्या होगा? ईगो, ईगो इससे तो मैं डिसॉल्व बोल नहीं रहा हूँ होगा, उससे हर भी एक का तो ईगो ईगो अलग शायद अलग मेल्ट रहेगा। डाउन हो जाता है ना, नहीं, ईगो क्योंकि मैं मेल्ट डाउन अकेले नहीं तो होता कुछ है, नहीं कर रहा। नहीं होगा? अच्छा। नहीं होगा, हर एक का ईगो है। फैमिली में ही देख लीजिए, 5 लोग हैं घर में, 8 लोग हैं घर में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, हाँ। टोटलिटी क्या है? सबका मिलके जो एक्शन हो रहा है वो हर एक पे अलग अलग इम्पैक्ट कर रहा है, उससे किसी का ईगो खत्म नहीं होता है, बल्कि ईगो क्लैशेस होते हैं, नहीं होते। अच्छा अच्छा। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है, वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कुड बी ऑफ द फैमिली, कुड बी ऑफ द सोसाइटी, कुड बी ऑफ द सिटी, कुड बी ऑफ द कंट्री, कुड बी ऑफ द प्लैनेट अर्थ। पूरे ह्यूमैनिटी का 800 करोड़ लोगों का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, दैट इज रिजल्टिंग इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उससे किसी का ईगो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। यस, अच्छा। नाउ यू से फर्दर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? तो ईगो को डिसॉल्व तो आपको अपने स्पेसिफिक साधना से ही करना पड़ेगा। इट इज योर इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी, यू हैव टू वर्क ऑन योर ईगो, यू कांट वर्क ऑन अदर्स ईगो। यू हैव टू वर्क ऑन योर ईगो, यू हैव टू वर्क ऑन योर विकार। आपके अपने जो विकार हैं, आपके जो अपने अंतःकरण में आपका ईगो, आपके इमोशंस और आपका इंटेलेक्ट जिस हिसाब से आपकी आपकी पर्सनैलिटी बना रहा है, उसमें जो ब्लॉक्स हैं वो आपको ही ढूंढ रहे हैं और आपको डिसॉल्व कर रहे हैं। उसके तरीके हम ढूंढ रहे हैं, या तो भक्ति योग में ओके। जाके कर सकते हैं या ज्ञान योग में कर सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं अभी। यस, यस जितिन, you want to share सर something? बस मैं यही जानना चाह रहा था मैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था तो मैंने कहा पूछ लूं। हाँ, तो आपको अगर अपने ईगो और अपने इमोशंस को सुधारना है, यानी कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक लेके जाना है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल साधना से ही होगा, किसी और के करने से कुछ नहीं होगा। यस, so that is जी an direct answer to whatever your question was. Okay, ठीक है सर। let's acknowledge Jitin. Yes, very good. जी थैंक यू। Yes, welcome Mani. Anything you want to add, anything you want to ask? Meanwhile, Gunjan, Amit ji, anything you have to share? Thank you, sir. Yes. Yeah, sir, I would like to share. मेरे को भी यही लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि चारों पाथ ही बहुत जरूरी हैं। तो मुझे लगता है कि चारों ही एक्चुअली बहुत जरूरी हैं। एंड उसमें भक्ति बहुत ज्यादा इजी है, बट अगर देखा जाए तो इतना इजी भी नहीं है भक्त होना, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए आपको। इतना विश्वास कि जो एक्ट हो रहा है आपके साथ, जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, ये हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को यही कहें कि सब उसकी रजा से हो रहा है, देन देयर इज भक्ति। यू आर अ भक्त ऑलरेडी। तो Absolutely. ये मैंने जरूर सीखा है अपनी जिंदगी में। Very good, Gunjan. That's a very good learning, very good थैंक यू, understanding. थैंक कि यू जो सो मच। कुछ हो रहा है, मुझे बेशक पता नहीं है क्यों हो रहा है, लेकिन भगवान की मर्जी से हो रहा है और मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। So जी whatever happens for good. WHHFG, जी हाँ अमित जी, your favorite dialogue. यस सर। So WHHFG जो है, whatever happens for good, is a perfect demonstration of भक्ति। कि आप पूरे सरेंडर में हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान जानता है ये मेरे अच्छे के लिए है, ये मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। So you are in complete surrender to the divine and you have full faith in the divine ways. So whatever is happening in the universe, you first accept it. So acceptance बहुत आसान हो जाता है when you are moving on the bhakti mark, because you have full faith in the divine. But having said that,
That does not give you permission not to do your karma. आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्म करने हैं, क्योंकि Yes, आपके sir. कर्मों के अनुसार ही आपको अपना परिणाम मिलेगा. But Yes, sir. accepting the situation, वो power आपको भक्ति योग से मिलती है when you have full faith in the divine. Very good, Gunjan. So that's a good Yeah. understanding. Yeah. Thank you, sir. Yes. Let's acknowledge Yes. Gunjan. Yeah, Good. thank you. Anybody else who want to share? किसी और को कुछ ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, कोई इंसाइट्स मिल रही हैं, कोई सवाल आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं. आज का डिस्कशन यही है, whether you want to move on one particular path, why not the other, and my point is why not both, right? So you should be शशि जी, एक having. क्वेश्चन और है मेरे माइंड में. हाँ जितिन जी, एक जितिन सेकंड बोलो. आपके पास आ रहा हूँ. पहले एक बार गौरव जी. शर्मा जी ने हाथ उठाया. लेट मी चेक विथ हिम. यस गौरव, यू वांट टू आस्क समथिंग? Uh, yeah, so I do not want to ask anything. It's like I just want to share this thing. I mean, it is my first time, right? Yeah. But I don't know whatever you are like saying. I'm just being happy and laughing because I don't know actually what is happening is कि it feels like कि जो भी बोझ I mean था, I mean it's sort of melting down. Maybe because you said this statement, we just believe in the divine, the thing related to bhakti yoga, right? And the divine will take care of you and everything is going to be fine. So something is shifting. I don't know what exactly is Good. that. So you're in the right space, right? So now you know that you're in the right space. And you see, sometimes the difficult situations are given to you so that you move forward in your spiritual journey. And you will get the right people in your life, so who can help you to move into that. Okay. So it's good that you called me in the evening and then you are here attending the session. So there is definitely a big commitment on your side, and let's see what divine has planned for you. Yeah. So be in the session, Yeah. see what opens up for you, and we will definitely have some better things for you in the near future. Okay. Let's acknowledge Gaurav. Very good. Yes. Thank you. Yeah. So follow your intuition, follow your hunch, and believe in the divine. That is the first step. So Bhakti Yoga is your part right now. अभी आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है. अभी आप full surrender to divine में रहिए and Bhakti Yoga को follow करिए. Yes, good. Yes, Jitin, I'll come to you now. You want to ask something? Go ahead. हाँ जी, मुझे पूछना था. अभी ना मेरे से पहले एक मैम ने एक बात बोली थी that everything that happens for the good. और हम सब ये मानते भी हैं. But शशि जी, मुझे ऐसा फील होता है और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो ये मेरे माइंड में बात चल रही है वो क्या है और शुड आई थिंक इट और नॉट, कि ऐसा नहीं है कि हम इस बात को यूज करते हैं टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग. That is the first step, no? हम Transformation. कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें और कुछ पता नहीं बोलने के लिए. अगर हमें पता होता कुछ और बोलना तो शायद हम ये बोलते ही नहीं. अगर आप Like when we कंप्लेनिंग have no मोड में solution. रहेंगे, अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, रिग्रेट में रहेंगे, ब्लेम करेंगे और दुखी रहेंगे, तो उससे क्या होगा बताइए? सर हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, शायद मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें, हाँ ये हो रहा है, तो हम अच्छा शायद एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं? Yes. The acceptance is the first step for transformation. If you want to transform your life, first thing you have to do is accept that, okay, I've created a mess and this is a mess I am in. So first acceptance is required, right? If you are in the path of Gyan Yoga, then you would actually work it out, okay, whatever is happening in my life is my responsibility. ये मेरे ही कर्म हैं जो वापस आ रहे हैं. तो ज्ञान योग से आप ये यहाँ पे पहुंच सकते हो कि मेरे ही कर्म हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, जो मेरे को ये सिचुएशन लाके मेरी लाइफ में खड़ा कर दिया है. चाहे मेरी जॉब चली गई, चाहे मेरे को कोई रिश्ते मेरे ठीक नहीं है, मेरे को बीमारी हो गई है, मेरे को कैंसर हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई है, ये जो भी कुछ हुआ है मेरे ही कर्म है. अगर ये ज्ञान मिल गया तो ये ज्ञान योग है. लेकिन अगर जिसको ये ज्ञान नहीं मिला है तो वो कहेगा जो कुछ हो रहा है भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, तो एक्सेप्टेंस आ जाती है. ये भक्ति योग है. करेक्ट. So both ways you will be surrendering to the divine and having full faith in the divine, which is bhakti yoga. So it will help you. Acceptance is the first level of transformation. अब आप उसके बाद नए कर्म करेंगे जिससे कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी. यस जितिन, इज दैट ओके? तो सर आपने जो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं ये मानता भी हूँ, बट शायद मैं उसके लिए प्रेजेंट नहीं था.
और जैसे आपने बात बोली एंड आई गॉट प्रेजेंट टू कि हाँ मैं यही शायद मानता भी हूँ कि जो है वो मेरे अपने कर्म है और मेरी वजह से रिजल्ट्स हैं, आई एम द कॉज इन द मैटर। करेक्ट। बट शायद हम इस बात को हमेशा यूज नहीं कर पाते कि हाँ आई एम द कॉज इन द मैटर, जो है वो मेरे We keep कर्मों की वजह forgetting. से ही है एंड आई We शैल मूव keep अहेड। forgetting, and that is why we keep हाँ blaming the हाँ situation. We keep blaming the outside world. राइट उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी झंड हो गई। राइट So we are always in a राइट blaming mode and complaining mode and crying mode, है ना, victim mode में रहते हैं कि मैं victim हूँ, हाँ सारे villains हैं मेरी लाइफ में। तो ये जो है, ये यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं अपनी लाइफ की, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, और जो आप रेजिस्ट करोगे वो परसिस्ट करेगा लाइफ में। जी Whatever you are resisting in life will persist in your life, correct? So you will continue to बिल्कुल ठीक be है। in a state of suffering and misery. तो अगर तो हम ट्रांसफॉर्म इसको करना है हैबिट लाइफ कैसे को, बना सकते हैं अपनी? तो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो लाइफ को। जो लाइफ सिचुएशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। नाउ यू सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन आफ्टर दैट, सर without blaming एक्सेप्टेड, yourself, लेकिन without blaming हाँ, others, with full gratitude, हम्म being happy, look at the हम्म situation and find a solution. You will find a solution, जी जी right? Anything जी। else? बस यही कि हम इस स्टेट में प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं कि हाँ मतलब जो हम भूल जाते हैं बार बार इस स्टेट को, हम इसके लिए प्रेजेंट होने के लिए क्या करें कि हाँ हमें प्रेजेंट रहे, यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी वजह से हुआ है, आई हैव टू रेक्टिफाई इट एंड मूव अहेड। ये हम इसको साधना है ना, कैसे उस स्टेट ऑफ माइंड में? ये साधना है। अच्छा या तो आप रोज 1 घंटा अच्छा निकालिए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, रोज विजडम लीजिए 1 घंटा, सुबह उठ के जी प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, वेडनेसडे जी सेशन अटेंड करिए, कुछ ना कुछ करिए ऐसे जी जिससे कि आपको एक रेगुलर हैबिट मिल जाए। क्योंकि अगर हाँ हैबिट जी बनानी है तो हैबिट के लिए कुछ करना पड़ेगा, जी आपको जी अपनी बिल्कुल साधना फिक्स करनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए जी मेरे बिल्कुल को रोज 1 घंटा मेरे को ये दिव्य ज्ञान लेना ही है, जी करेक्ट? जी जी So some जरूर। practice has to be there. Your spiritual practices will move you forward, हाँ जी हाँ जी correct? So it will keep reminding जी you. थैंक यू सर। Sometimes you talk of law जी of karma, sometimes you talk of law of acceptance, sometimes you talk of law of dharma. जी तो जो spiritual laws हैं हम्म उनसे आप बात करते रहेंगे, उनको उनके बारे में आपके बार बार बम्बार्डमेंट होगी तो आपको वो ज्ञान मिलता रहेगा। प्रैक्टिस इज द हाँ ओनली जी सोल्यूशन। जी नॉलेज से जरूर कुछ नहीं होता है। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द नॉलेज इट बिकम्स ए हम्म विजडम, एंड विजडम वंस इट कम्स विल नेवर गो। हाँ जी नॉलेज भूल सकते हो आप, विजडम कभी नहीं भूलोगे, है ना? क्यों? जी क्योंकि नॉलेज जी आपके सेरिब्रल मेमोरी में होता है, ब्रेन में, जबकि विजडम आपके हम्म सेल्यूलर मेमोरी में होता है, आपके हर सेल्स में होता है, सबकॉन्शियस माइंड। यस, ओके ठीक है सर। so the wisdom will never go. Very good Jitin, good question, and I hope it has थैंक answered the questions for many other यू जी people. जी। Right, welcome. Yes, anybody else? Any other question? Bhakti Yoga and Gyan Yoga, and of course whatever you learn from this you will put that into your कर्म योग। कर्म करना ही है, कर्म के बिना आपको लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो अंडरस्टूड है। बट व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज द distinctions and benefits of Bhakti Yoga and Gyan Yoga. Yes, anybody else? I was having a very interesting conversation with one of my friends, and he says ज्ञान योग से ईगो बढ़ जाता है, इसलिए भक्ति योग से ईगो कम हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर भक्ति योग। वेरी गुड, so that is your take on that. But he made a sweeping statement like ज्ञान योग से ईगो बढ़ जाता है, which is not correct. अगर असल में आप ज्ञान योग फॉलो कर रहे हो तो you will be able to tear your ego apart very easily, correct? So anybody who has this thought कि ज्ञान योग से ईगो बढ़ता है, ज्ञानी मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे ऐसा ज्ञानी कोई नहीं, हाँ, तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है किसी को, तो ऐसे ज्ञानियों से बच के रहना चाहिए। तो अगर किसी को ऐसा थॉट प्रोसेस है तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ज्ञान योग में हम ये बोल रहे हैं, बेसिकली जो भी हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से बड़ा है, या मैं दिव्यता में आगे बढ़ रहा हूँ और तुम छोटे मोटे इंसान हो मेरे सामने। नो, द बेसिक आइडिया ऑफ ज्ञान योग इज व्हाट गॉड इज इन ऑल ऑफ अस। जो दिव्यता मेरे अंदर है वही दिव्यता तुम्हारे अंदर है,
मुझे समझ में आ गया है और आपको अभी समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना ही फर्क। शायद आपके तामसिक और राजसिक संस्कार ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए आप थोड़े लोअर वाइब्रेशन में हैं, और मैं वहां से बाहर निकल के आ गया हूँ। मैं सात्विक संस्कार में जी रहा हूँ, तो मेरे एक्शंस उसी हिसाब से थोड़े से अलग हैं। तो हर एक को अपने संस्कारों के हिसाब से ही और अपने गुणों के हिसाब से ही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हों। करेक्ट? तो इसमें कोई घमंड करने का या फिर किसी को नीचे दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। Sir, can I add something? यस गुंजन, गुड। सर, जब मैंने आपसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई गुरु बनाऊंगी अपनी जिंदगी में। बट जब मैंने आपको देखा एंड आपको मिली तो मुझे पता चल गया था कि कुछ एक इंटेंशन, मतलब एक इंट्यूशन हुई थी कि समथिंग वेरी पावरफुल इज देयर। सो मैंने आपके पूरे मतलब ट्रेनिंग ली आपसे, कुछ पिछले काफी सालों से ले रही हूँ और हीलिंग्स भी ले रही हूँ। एंड मुझे हमेशा शाम को जब मैं आपको कॉल करती थी तो मेरे को डांट पिटती थी हमेशा। तो मेरे को लगता था कि यार बहुत ईगो है इस इंसान में। हमेशा डांटते ही रहते हैं, गुरु क्या बन गए तो डांटते रहते हैं मुझे। बट देन एक दिन आपने मुझे कहा कि गुंजन, मेरे बेटे की हीलिंग करो। एंड आई वाज स्टन्ड, आई वाज लाइक शॉक्ड। आई सेड कि मैं हीलिंग करूं? मैं तो इतनी लायक ही नहीं हूँ सर आपकी आंखों में। मुझे नहीं लगता था कि इतनी लायक हूँ मैं कि मैं आपके बेटे की हीलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े हीलर हैं मेरे हिसाब से। तो उस दिन मुझे अपनी वो पता चली कि ओके सर मुझे इक्वल देखते हैं, इनमें ईगो नहीं है। मैं गलत समझ रही थी अपने ही गुरु को। तो मेरी ओके आंखें बहुत ज्यादा उस दिन खुली। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके, वेरी गुड। It's लेट्स an emotional एक्नॉलेज, moment for me. Yeah. yeah, let's acknowledge Gunjan. So it is not about looking at others, actually it is looking at yourself. हाँ? तो अपने अंदर वो ईगो नहीं लाना है कि हाय वो बहुत बड़ा हीलर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो भी ईगो है। अगर आप बोलोगे शशिधर तो बहुत बड़ा हीलर है, मैं गुंजन कुछ नहीं हूँ, ये सब बहुत बड़ा ईगो है। जहाँ आप अपने को कम समझ रहे हैं किसी से। आप किसी से कम नहीं हैं Thank you. और कोई आपसे बड़ा नहीं है। हम यूनिक हैं अपनी अपनी जगह पे। आई एम यूनिक, यू आर यूनिक। We don't have to compare ourselves with anyone else. Because Thank जो you. दिव्यता मेरे अंदर है वही दिव्यता आपके अंदर है. It is being expressed in different ways. That's all. Few years of sadhana and you can move your spiritual journey to a very very great level of consciousness. And that is what we are all up to. हम सब awakening के पाथ पे हैं और आगे बढ़ना है. मुसीबतें आएंगी, उनका सामना करना है, हीलिंग करनी है और आगे बढ़ना है. और हीलिंग का मतलब क्या? अपने चित्त को साफ करना है. जो तामसिक संस्कार हैं, जो राजसिक संस्कार हैं, उनको हील करके उनको उनसे पीछा छुड़ाना है, यानी कि उनसे फ्री होना है और सात्विक संस्कारों को फॉलो करना है. अपने सारे कर्म हमको सात्विक Yes, sir. संस्कारों से करने. Yes. दैट इज द पाथ ऑफ हीलिंग. करेक्ट? वेरी गुड. लेट्स एक्नॉलेज Yes, Gunjan sir. once again. Yes. Anybody else who has any question? Any doubts? Anything you want to ask? Anything you want to share? Please go ahead. Still have some time. मैं आज ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाह रहा था, आज सिर्फ डिस्कशन करना चाह रहा था, so that you are clear about the various paths of yoga. How you can invoke the divine in you, how you can end the suffering and misery in your life, how you can transform your life, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो. अपनी लाइफ को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. ओके? यस. एनीबडी एल्स? ज्योति जी वेलकम. अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए. हो गया? सारे क्वेश्चंस खत्म? तो फिर सेशन बंद करते हैं. अगर कोई सवाल नहीं है तो वी विल क्लोज द सेशन. एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर, प्लीज गो अहेड. जस्ट शेयर व्हाटएवर इज ओपनिंग अप. कोई नई चीज सीखी, कोई नए क्वेश्चंस आ रहे हैं? यस यस गौरव, गो अहेड. सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। जैसे कि अभी जैसे कि आप बता रहे थे मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग, इन चीजों के बारे में, एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जो आपने बताया कि जो भी चीज अगर लाइफ में हो रहा है आपके, जो भी मतलब रियलिटी यूनिवर्स में है,
अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो मतलब वो मतलब चला जाएगा मतलब लाइफ से, राइट? उसके बाद आप सो उस एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, बदल नहीं पाओगे, है ना। तो अगर लाइफ में कुछ मतलब हो रहा है विक्टिम मोड में गड़बड़, रहो। उसको बदलना है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये हो गया है या हो रहा है मेरे साथ, अब इसके आगे क्या करना। दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस विदाउट ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड विदाउट ब्लेमिंग अदर्स, क्योंकि हम एक हाँ आत्मा मतलब है। ईगो ड्रॉप हो गया तो हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं ईगो मेरे ख्याल ड्रॉप से, तो ईगो बाद की में वजह होगा, से। पहले लाइफ को एक्सेप्ट करो। ईगो के साथ एक्सेप्ट करो, ईगो अपना रखो ओके। अपने पास, पहले लाइफ को एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्टेंस का मतलब है किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम नहीं करना, और ये मानना कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, अब जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे पास है, मैं भगवान का प्यारा बच्चा हूँ। अब जो कुछ होगा मेरे साथ अच्छा होगा। अभी तक जो होना था वो जरूरी था, हो गया, कार्मिक था, पुराने कर्मों का फल था, निकल गया। अब से आज के बाद मेरे साथ सब अच्छा अच्छा होगा, और मैं अच्छे कर्म करूंगा और मेरी लाइफ अच्छी होगी। ये एक विश्वास होना चाहिए, तब आप अपनी लाइफ को बदलेंगे। यस। तो आई वांटेड टू लाइक आस्क कि लाइक right now automatically I feel like yeah, I was in that acceptance mode after like getting on this call, हम्म क्योंकि जो थोड़ा सा हमें मतलब पास्ट का बोझ कह लो या जो भी अवेयरनेस थी मतलब हम्म वो जा सी रही है। सो मैं जैसे मतलब आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अगर लाइक इफ आई लेट गो ऑफ लाइक दीज बिलीव्स और लिमिटेशंस व्हाटएवर लाइक आई हैड, यस maybe those areas where I was having issues or problems यस may start getting transformed, right? यस, दे विल स्टार्ट गेटिंग बेटर ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे बिलीव्स ही हमारे लाइफ को चला रहे हैं। बिलीव्स लीड टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू रिजल्ट। तो आपके बिलीव्स अगर डिसएम्पावरिंग होंगे तो आपके रिजल्ट्स भी फेलियर्स और मिजरी और सफरिंग ही होगी। अगर आपके बिलीव्स एम्पावरिंग होंगे, आपके एक्शंस अकॉर्डिंगली अच्छे होंगे, उसी हिसाब से आपके लाइफ में सक्सेसफुल रिजल्ट्स आएंगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी जॉयफुल, यू विल बी फुल ऑफ एंथुसियाज्म। ये सब आपके बिलीव्स पे ही डिपेंड करता है। करेक्ट। And also yeah, I mean absolutely कि जो भी whatever our beliefs हैं कि they are indirectly मतलब connected to our actions, then actions जो है results से connected हैं। And also I wanted to like it's like a little personal from my side, मतलब in like if I tell you something मतलब it may like help other people also, like if somebody is like watching this in future as well, कि like if I tell you like about myself, the thing with me is that कि I'm a very बड़ा वाला विक्टिम जिसे बोलते हैं ना कि I have इट्स like ओके, blamed a lot इट्स of ओके। people like my friends and family कि they have like betrayed me or something like that, but I just got this realization just now like when we were having we were talking about this acceptance thing की, and also you mentioned कि जब तक हम किसी चीज को resist करेंगे तो वो persist करता है लाइफ में, and तो वो चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगा। सो मेरे ख्याल से जब तक एज लॉन्ग एज आइदर मी और एनीबडी इज लाइक होल्डिंग ऑन टू सच टाइप ऑफ सेटबैक्स और बिट्रेयल्स और वॉट एवर द रिलेशंस जो भी किसी ने किया है हमारे साथ में, वी कैन नॉट लाइक मूव ऑन एंड इनवाइट वेरी गुड, other opportunities or very good possibilities in our insight, life. Gaurav. That's a very powerful insight. If you just stay with it, I'm sure you will find out great results very very shortly. Okay, but I'll just add something to it. There are many situations in life जहाँ पे हमको लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। यही विक्टिम मोड होता है ना। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, और जो मेरी लाइफ में जो लोग हैं वो भी एक आत्मा है, भगवान का ही अंश हैं, और वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये दुख और दर्द देना था, इसलिए मेरे परिवार में या मेरे लाइफ में आए हैं। उनको ये कार्मिक था, ये दुख देना था, इसलिए वो आए। ये मत बोलिए कि मेरे भाई ने होके मेरे से ऐसे किया। उस सोल ने आपके वो दुख देना था, इसलिए भाई बन के आया है। ठीक है, या दोस्त बन के आया है। उसने आपको फाइनेंशियल घाटा देना था, धोखा देना था, पैसे लूटने थे आपके। पिछले जन्म में आपने उसको लूटा था, इस जन्म में वो वापस आया लेने के लिए। तो कार्मिक है, ये दुख देना था, हो गया। तो आप उसके लिए ज्यादा
ड्रामे तमाशे करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है, जो कुछ हुआ कार्मिक था, हो गया, खत्म, कार्मिक अकाउंट खत्म करो। अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और आज से मेरे कर्म अच्छे होंगे, मेरी लाइफ अच्छी होगी, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, और मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, मेरी वेल्थ अच्छी होगी, और मैं बहुत खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा। इस बिलीफ के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होगी। पर दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, पैसे का नुकसान हो सकता है, चाहे उन्होंने आपको मरने के लिए सड़क पे फेंक दिया हो, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब कार्मिक है। हो गया, खत्म, फिनिश। अब उनके लिए सिर्फ लव, पीस, एंजॉय, दुआएं दो उनको, और आगे बढ़ो लाइफ में। ये होता है एक्सेप्टेंस का मतलब, और तब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। यस गौरव, वी विल डिस्कस दैट टुमारो। कल मैं आपसे 1-to-1 में अलग से बात करूंगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ज्ञान काफी है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स एक्नॉलेज गौरव, वेरी गुड। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू शेयर फ्रॉम पर्सनल लाइफ। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? और कोई शेयर करना चाहेंगे? मनी, यू आर ऑन अ साइलेंट मोड टुडे। सर मतलब सबसे आंसर्स सुन रही हूँ, आई थिंक मतलब सब कुछ अभी आज कोई क्वेश्चंस नहीं है दिमाग में। आई थिंक जितने भी भक्ति माँ के क्वेश्चंस है वैसे ही आप बता चुके हैं कि क्या मतलब अभी राइट नाउ आई फील आई एम गेटिंग टू नो थ्रू अदर्स क्वेश्चंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि मैं परम ज्ञानी बन गई, but then through Yeah. others questions I think Krishna is answering through others questions, so Very good. even if something was popping up it got cleared. So yeah, Very good. Let's acknowledge Mani for that understanding. Very good. So you, of course, your questions get answered by listening to others. If you're a good listener, you will actually see, अरे यार यही तो मेरा सवाल था ना, जवाब मिल गया, kind of a thing. Very good. So to summarize, we can say कि भक्ति योग is very very powerful in purifying your heart and melting your ego. क्योंकि आप भक्ति में जब आप भक्ति सॉन्ग सुनते हो, you can actually have the tears coming down and ego is really melting very fast. तो ईगो के मेल्टिंग के लिए जाएगा कहीं नहीं ईगो, लेकिन वो मेल्ट हो जाएगा और आपके जो हार्ड कोर इमोशंस हैं नेगेटिव, वो धुल जाएंगे, और उसके साथ फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजें बड़ी नेचुरली आ जाती हैं, जो आपको इमोशनली स्टेबल करती। तो मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भक्ति योग इज वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज इट हील्स योर हार्ट चक्र। जब तक हार्ट चक्र हील नहीं होगा, आपकी कॉन्शियसनेस थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र पे नहीं जाएगी। This of course is a topic of the healers program, but then let me say that क्यों? क्योंकि wisdom जो है वो आपको थर्ड आई चक्र पे ही मिलेगी। Your divine wisdom, divine intuition will develop only at third eye chakra, आज्ञा चक्र, and that is why intellect, emotional अगर हार्ट सेंटर पे है तो इंटेलेक्ट जो है वो थर्ड आई सेंटर पे है। तो इन दोनों का, दिल और दिमाग की लड़ाई बोलते हैं ना अक्सर, तो अगर दिल पूरी तरह से हील्ड होगा तो दिल और दिमाग की कभी भी लड़ाई नहीं होगी। एंड इंट्यूशन जो आएगा वो आपको डिवाइन इंट्यूशन के साथ आएगा, एंड डिवाइन लव होगा हार्ट में। तो सेल्फ लव, डिवाइन इंट्यूशन का कॉम्बिनेशन जो है आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। इट विल ऑलवेज बी ए डिवाइन गाइडेंस एंड यू विल ऑलवेज मूव इन द डिवाइन अम्ब्रेला। आपको एक डिवाइन अम्ब्रेला, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा, और उसी के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी अगर गड़बड़ होने वाली होगी, यू गेट सच अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ब्रेन हार्ट एंड गट कनेक्शन। तो अगर ब्रेन इज हील्ड, थर्ड आई इज हील्ड, इमोशन इज हील्ड विच मीन्स हार्ट इज हील्ड, एंड ईगो इज हील्ड विच इज द गट, जो हमारे नेवल सेंटर पे होता है। तो ये तीनों अगर बैलेंस्ड हैं, हार्मनी में हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू ऑल द मेजर इश्यूज ऑफ योर लाइफ वेरी वेरी इजीली, क्योंकि आपकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। डिवाइन इंट्यूशन है, डिवाइन लव है, इट विल ऑलवेज गाइड। So that is in short the summarization, and that is why I keep saying, like Swami Vivekananda used to say, find out the combination. कभी भी either और की मेंटालिटी में मत रहो कि मेरे को भक्ति योग करना चाहिए या ज्ञान योग करना चाहिए। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट कॉलिंग आएगी, जो कॉलिंग आ रही है वो करो। भक्ति योग का मन है, भक्ति योग करो। ज्ञान योग का मन है, ज्ञान योग करो। दोनों करो। आपको नहीं मालूम है कौन सा कॉम्बिनेशन कब काम करेगा, आपको अपने चित्त को साफ करना है। उसके लिए जो मर्जी
मेथड आप अपना सकते हो। कभी राजयोग में आपको मन कर रहा है तो मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ये राजयोग। तो ऑल द 3 कॉम्बिनेशंस कैन प्यूरिफाई योर चित्त, your subconscious mind, and when you put that into action, obviously you will become a karma yogi, because you will never be attached to the results. You will be taking action because it is your duty. ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, इसलिए आप उसे करेंगे। तो आप चारों योग को सही कॉम्बो बना के स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, राइट? So that is the session for today. So last and final call. Anybody who wants to share or ask any question, you're welcome. Otherwise, we'll close the session. कभी-कभी जल्दी भी करना चाहिए, है ना? Yes. Anybody who wants to ask any question or share? Dr. Nilesh, anything you want to share? सर एक क्वेश्चन मेरा, हाँ जितिन, yes. सॉरी, हाँ मेरा सॉरी लास्ट नहीं, थैंक क्वेश्चन। यू, बोलिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम परेशान होते हैं और उसके बाद हमारे माइंड में एक्सेप्टेंस वाली बात आती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट अगर हम किसी अपनी जिंदगी के किसी काम में जब फोकस्ड होते हैं, किसी लक्ष्य की ओर चल रहे होते हैं, तो शायद ये बातें नहीं आती माइंड में कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, या हम किसी चीज की वजह से रुक जाएं या किसी चीज में फंस जाएं और खुद को कोसने लगे। अगर हम कहीं फोकस्ड होते हैं तो शायद हम बस चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता हमारी लाइफ में। क्या ये जो अभी हमारे माइंड में थॉट्स आती हैं, ये इसलिए आती है क्योंकि हम कहीं फोकस नहीं है अपनी जिंदगी में? फोकस से ज्यादा मैं ये बोलूंगा, अगर आपका पाथ सही नहीं है, इफ यू आर मूविंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, द पाथ इज राइट, तो फोकस तो गोल पे होता है ना। फोकस तो गोल पे होता है। गोल अगर आपका सही है, विच मीन्स इफ यू आर मूविंग ऑन द राइट पाथ, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मान लीजिए आप अभी नागपुर में है, ठीक है जी। नागपुर से आपको जाना है हिमालयस की तरफ, और आपने ट्रेन पकड़ ली है चेन्नई एक्सप्रेस, जो चेन्नई जा रही है। अब आपका गोल क्या है? स्टेशन। स्टेशन तो आ रहा है, स्टेशन तो आप देख भी रहे हो, लेकिन आपका पाथ गलत है, समझ रहे हो? आप कह रहे हो चेन्नई एक्सप्रेस बिल्कुल सही ट्रेन है, आप नागपुर से जा रहे हो साउथ की तरफ, बट आपका एक्चुअल पाथ क्या था? एक्चुअल डेस्टिनेशन आपका क्या था? यू वांटेड टू गो टू द हिमालयस, राइट? तो फोकस होने के बावजूद आप गलत पाथ पे हैं, इसलिए आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा और सफरिंग एंड मिजरी मिलनी ही मिलनी है। ओके। तो फर्स्ट यू शुड नो द पाथ। आपका डेस्टिनेशन क्लियर है हिमालयस की तरफ, तो आप नॉर्थ की तरफ की गाड़ी लेंगे। तो नागपुर से आपको सबसे पहले कुछ और नहीं तो कम से कम दिल्ली की गाड़ी लेनी है, या जम्मू की गाड़ी लेंगे, करेक्ट? Then you know the path is right. Then you are moving. Every station will tell you that yes, focus is right, goal is right. और जब उस पे जाएंगे तो अगर मुश्किलें आ भी गई तो आप उसको पार कर लेंगे, क्योंकि आपके पाथ सही है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी सही है, आपकी स्पिरिचुअल पाथ सही है, और जो तरीके आपने अपनाए हैं वो भी सही हैं। यू आर ड्राइविंग और यू आर ट्रैवलिंग प्रॉपरली, तो आपके रिजल्ट सही होंगे। मुश्किलें आएंगी, कोई बात नहीं, आप तैर के निकल जाएंगे, पार कर लेंगे उसे, झटका नहीं लगेगा। तब हमारी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ग्रेटफुल, यू विल बी इन ए वेरी वेरी हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड। यस, और एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है रिगार्डिंग द थिंग्स दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड थिंग्स आर हैपनिंग, यू कैन सी द रिजल्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ ना। वरना तो वहां अगर उल्टी ट्रेन में जा रहे हैं तो सब लोग बोलेंगे अबे कौन सी ट्रेन में आ गए, सब हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, पीपल विल रिजेक्ट यू, एंड समहाउ यू, आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं उल्टी गाड़ी में जी। पर जब पता लगेगा आपको टोटल डिसऑर्डर हो जाएंगे, अरे यार पैसे का नुकसान, टाइम का नुकसान, रिसोर्सेज का खराब, अब मैं कैसे पहुंचूं वहां पे, नाउ यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, डेस्परेट, सो ऑल दीस थिंग्स विल हैपन, व्हाई यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ एंड यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। तो इसीलिए सही पाथ चुनना जरूरी है स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आप चल रहे हो तो सही पाथ, यानी कि कौन सा पाथ आप चल रहे हो उसकी सही प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है, और सही डेस्टिनेशन यानी कि सही रिजल्ट्स दिखनी जरूरी है। प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, तो उसमें रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, देन यू नो यू आर ऑन द राइट पाथ। हाँ जी, है ना? ठीक है यस, जी। वेरी गुड जितिन, लेट्स एक्नॉलेज जितिन, वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?
Right. So in that case, today I think there are less questions, so never mind, but the topic is clear. So I hope all of you are clear on the insights. So whatever you have learned from this session, Sir, I have a question. practice. Yes, very good, Mani. No, Good. just a clarity that listening to your session or any satsang जहाँ पे कुछ चीजें clear हो रही हैं, सब वो ज्ञान मार्ग हो गया या वो भक्ति मार्ग ही होगा? अगर कोई भक्ति मार्ग का प्रैक्टिस आपने ढूंढा है, उसको प्रैक्टिस करने लग गए तो भक्ति मार्ग है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, if you are getting the right understanding, then it is ज्ञान मार्ग. ज्ञान मार्ग, okay. The highest understanding is ज्ञान. Likewise, जैसे सर जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जैसे वो बहुत चीजों को लेके सिंप्लीफाइड आंसर्स कभी कुछ देते हैं, जैसे मतलब बहुत कुछ, जैसे वो ज्ञान मार्ग ही हुआ ना? वो तो राधे राधे बोल रहे हैं. नहीं सर, वो तो बहुत कुछ बताते हैं. जैसे सर बहुत छोटी बात है, लाइक छोटी बड़ी, लाइक देखो जैसे बचपन से probably I have been going with my mama to every कीर्तन. तो जैसे आप कीर्तन पे जाते हो, ठीक है, आपने भजन गाए, सुने, आप आए घर पे, बट व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द कीर्तन? हर जगह देखा होगा, प्रसाद ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जस्ट होर्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स. अब जैसे मुझे इस चीज का मतलब ये आइडिया और ज्ञान कह लो, मैं अगर उठाना भी है, लेट्स से अगर कोई दे रहा है तो आप थोड़ा सा लेना है ना? जैसे सर मैं आई वुड से दैट आई वाज आल्सो आई एम आल्सो इंक्लूडिंग माय सेल्फ, इवन जितना मिल रहा है उतना कम है, चाहे मुझे खाना है या नहीं खाना, आई वुड प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूट इट. बट नाउ आई थिंक इट हैज गॉट इनटू माय माइंड दैट इट इज नॉट गुड बी इट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग. या जैसे वहां पे लोग बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सत्संग किया, कीर्तन किया, इतने अच्छे-अच्छे भजन गाए, सब कुछ किया, बट उसके बाद में एनीथिंग लाइक कुछ कोई बात कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं. तो ये जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तब तक वो सत्संग अटेंड करने का, सबसे वो पहले भक्ति तो करने ये का भक्ति योग है. ये सबसे पहले भक्ति समझ योग. लीजिए ये भक्ति योग. अच्छा, ओके तो भक्ति योग में you will have an opportunity to purify your heart. ओके. So do that. और अगर दूसरों को जज नहीं करना, अगर वो चुगली कर रहे हैं, करने दो ना, उनकी प्रॉब्लम है. You should be free from that. You should be able to see them कि ओके थोड़े से तामसिक हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आशीर्वाद प्रसाद ज्यादा खाएंगे, थोड़ा ज्यादा प्रसाद खाएंगे, ठीक हो जाएंगे. लाइक दैट. सो हैव कंपैशन. तो भक्ति योग से आपके अंदर कंपैशन आना चाहिए दूसरों को देख के. ये नहीं कि क्या भक्ति अभी 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 तो सत्संग अटेंड किया, अभी चुगली कर रहे हैं, कितने घटिया लोग हैं. नहीं, फिर आपने भक्ति योग का कुछ नहीं सीखा. ओके, ठीक है सर. You should have compassion, have compassion to them, and send the blessings of love, peace and joy. कि कोई बात नहीं, संस्कारों से जल्दी ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे. पर ये भक्ति है. सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दिस. आप प्रवचन सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये भक्ति हो गई. करेक्ट. प्यूरिफाई योर हार्ट. फोकस ऑन दैट ओनली. वहां ज्ञान नहीं मिल रहा है. ज्ञान मिलेगा जब आप भगवत गीता पढ़ोगे. यस सर. करेक्ट. वहां से कुछ लिया और वो आपने अप्लाई किया. जब आप वेदांता विजडम करोगे, अभी शॉर्टली एक हफ्ते के बाद हम शुरू करेंगे, तो उसमें जो ज्ञान मिल रहा है वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड लाइफ में एक मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट होंगे. दैट इज ज्ञान योग. ओके सर. ओके. ज्ञान नॉलेज विल कम फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. और द प्रवचन से ज्ञान मिल रहा है, उसको अप्लाई करोगे और लाइफ में चेंजेस आएंगे. वहां वो ज्ञान. तो इफ ही टॉक्स ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा, और वापस आके आपने अपने लाइफ में 5-6 लोगों को क्षमा किया, and then you get that wisdom, that is Jnana Yoga. But otherwise listening to the pravachan is pure bhakti yoga. Clear? But use the combination, it works. आप प्रवचन सुन के भी अपने अंदर ज्ञान का भंडार जगा सकते हो, तो ज्ञान योग भी आ जाएगा. But be ready to change yourself and transform yourself as much as you can, whenever you can, from any source. See, the person or the messenger is never important, the message is important. तो प्रेम महाराज जी ने बोला हो, या आपको वेडनेसडे सेशन में मिला हो, या सदगुरु ने बोला हो, डजंट मैटर. आपको ज्ञान मिल गया, पकड़ लो. That's it. Yes. Now it is 10 o'clock, so officially we will close the session now. So thank you very much for your participation. Enjoy your life. Enjoy a great week. We meet again next week with a lot more discussions. Till then, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you, Take care. sir. Good night. Bye-bye. Take care. Thank you. Good night.